evening, my student friends. In my last video, we discussed here that substitution reactions in inorganic complexes, and we discussed the types of the mechanism in a substitution reaction, particularly in inorganic complexes. In this video, we discussed ligand substitution reaction in octahedral complexes without breaking of the metal ligand bond. यहाँ पे देखिए, इन दिस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले यहाँ पे कि लिगैंड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन वो हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द मेटल लिगैंड बॉन्ड. तो बाय यूजिंग दिस वन एग्जांपल we discussed how that substitution of the one ligand in place of the other without breaking of the metal ligand bond. तो यहां पे एग्जांपल है, यहां पे देखिए पेंटामाइन कोबाल्ट कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स. Here aquation takes place in that of the carbonate complex. This is the pentamine cobalt complex carbonate complex के in the presence of that is the acid. ठीक है, तो during the formation of that aqua complexes, the bond between cobalt and oxygen is not broken. वो bond जो है वो intact है. Yes, and that can be shown in this. Here you see the bond between the oxygen of that carbonate group and the cobalt is remains intact. Only here that is the addition of the H plus ions are takes place to form that is the aqua complexes. Then you see in this reaction particularly is carried out in the presence of the water labeled with that is the oxygen 18 isotope. The neither aqua complex of this means product nor the CO2 evolve, means here CO2 is formed during that reaction, is formed in that equation contains oxygen 18 isotope. यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है या जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गए उसमें ऑक्सीजन 18 आइसोटोप नहीं आ गए. इसका मतलब है कि जो बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कोबाल्ट है वो ब्रोकन नहीं हो चुका. The bond between the carbon and oxygen of the CO2 minus is a broken. Means bond किसके बीच का, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एंड कोबाल्ट के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो चुका है. And the bond between cobalt and oxygen remains, that is the unbroken. Then you see what is the mechanism for that reaction. In a that is the first, that reaction is taking place in a 3 step. We discussed that mechanism by using the 3 step. First one, in this step oxygen atom attach with the carbon atom of the CO3 2 minus ion is protonated by the H plus to form that is the intermediate. This is the intermediate first is formed. Then you see here this carbon oxygen atom I here written by the S orange color, that forms a bond between the cobalt and the carbon, and you see that oxygen atom, this oxygen atom is protonated by using that is H plus ions to form intermediate, that is the I. You see intermediate, that is the first intermediate is formed. This oxygen atom is protonated. Then intermediate first, in second step क्या हो रहा है, intermediate वो first form in a first step loses that is the CO2 to form hydroxo complex. यहाँ पे देखिए ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है उन्होंने क्या कर दिया, ये जो CO2 ग्रुप है वो लूज हो गए, इस डिकम्पोज होके वो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन है वो ब्रोकन हो गए और CO2 इवॉल्व हो चुका है और आपको क्या मिल गया है, हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स सेकंड मिल गया है. और थर्ड स्टेप में क्या हो गया है, देखिए आप थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप में
जो हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स सेकंड मिला है उसका फिर प्रोटोनेटेशन हो गया बाय यूजिंग दैट इज H+2 फॉर्म दैट इज एक्वा कॉम्प्लेक्स। यहां पे देखिए ये जो OH है और H+ आयन उन्होंने जो ये हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स है उसको प्रोटोनेशन कर दिया है और आपको मिल गया ये एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या ध्यान पे रखने का है, जो ऑक्सीजन एटम है, ये जो ऑक्सीजन एटम है वो जैसा फर्स्ट में था वैसा ही यहां पे रह गए। यहां पे ऑक्सीजन 18 लेके वाटर आइसोटोप ऑक्सीजन 18 आइसोटोप लेके रिएक्शन कैरी किया था, लेकिन वो ना प्रोडक्ट में आ गए ना CO2 में गए। इसका मतलब है जो बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कोबाल्ट है वो ब्रोकन नहीं हो चुका है। और ध्यान पे रखने का, यहां पे कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो यहां पे भी कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहां पे देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट +3 है, लेकिन चार्ज ऑन दैट कॉम्प्लेक्स +2 है, यहां पे +1 था। तो ऐसा क्यों हो चुका है? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है, ये +2 होने का मकसद ये CO3 2- था उसमें वो निकल गया है, तो +2 ये +3 है और ये OH- का -1, तो इसके ऊपर +2 रह गए। यहां पे देखिए +2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है +2 है, लेकिन ये जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और उसके बाद यहां पे भी देखिए ये जो कोबाल्ट है वो +3 में है, क्योंकि ये OH- है और ये जो कॉम्प्लेक्स जो है हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर +2 चार्ज है। और प्रोटोनेशन होने के बाद यहां देखिए यहां पे कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है। अमाइन एंड द वाटर दोनों भी जो लिगैंड्स है वो है न्यूट्रल लिगैंड, इसके वजह से जो कुछ कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है +3 वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहां पे +3 चार्ज है। तो यहां पे जो रिएक्शन हो चुका है वो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो गया है, खाली वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द लिगैंड चेंज हो रहा है इसके लिए। और यहां पे जो कोबाल्ट एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रोकन नहीं हो चुका है। बॉन्ड कौन सा ब्रोकन हो गया है? वो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ द ligand substitution reaction taking place in octahedral complexes without breaking of the metal ligand bond। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्कस द ligand substitution reaction in octahedral complexes without breaking of the metal ligand bond। तो आपको उसका एक स्टेटमेंट और उसके बाद उसका मैकेनिज्म आपको लिखना होगा। Thank you for watching this video. If you like this video, share it with your friends and press the bell icon button. Thank you very much.